الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في وسطها رواه النسائي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آنا نہیں جاگ رہے ہیں بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آنا نہیں الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آنا نہیں بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آنا نہیں الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آنا نہیں تے کامل دین مکمل ہویا دین اسلام کامل دین مکمل ہویا کسی اور آ سمجھاؤنا نہیں تے جنہ محمد پاک نو چھوڑ مرزے قادیانی نو منیا انہاں بالکل جنت جاؤنا نہیں تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ چوکی بھاگٹ کے زیر اہتمام آج آپ کے اس چک 71 میں یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے میں اس عظیم الشان کانفرنس کے منعقد کرنے پر اس حلقہ کے ذمہ داران جناب پیر محمد حسنین معاویہ صاحب اور مولانا ساجد معاویہ صاحب اور محترم قاری محمد زبیر صاحب مولانا زبیر صاحب اور اسی طرح سے ہمارے ضلعی صدر جماعت کے بھائی محمد زبیر جٹھول صاحب اور ہماری جماعت کے نائب امیر محترم قاری عبدالوحید صاحب اور حضرت مولانا حیدر علی صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے یہاں کے مقامی ہمارے نوجوان ساتھی بھائی محمد عبداللہ صاحب محمد افضال وڑائش صاحب اور چودھری محمد اشرف صاحب دیگر بہت سارے احباب اشتہار میں بھی کئی نام ہیں ہمیں یاد ہوں یا نہ ہوں اللہ کو سب معلوم ہیں اور اللہ کے فرشتے آپ سب حضرات کے نام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں حضرت علامہ صاحب بھی موجود ہیں علامہ محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم دیگر ہمارے تمام مسالک کے علماء اور نمائندگان موجود ہیں اور یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا معجزہ ہے کہ جتنی بھی امت انتشار اور تشتت کا اور اختلافات کا شکار ہے لیکن میرے اور آپ کے سونے نبی کی ختم نبوت کا معجزہ ہے جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ساری امت گلدستے کی طرح سج جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے یہ بھی آقا پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا زندہ جاوید معجزہ ہے احباب کرام
बयानात आपने समात फरमाए हैं। और अभी हमारे असल जो बड़े मेहमान हैं अल्लामा साहब तशरीफ फरमा हैं, और जो साबिक कादियानी रह चुके शमसुद्दीन साहब वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। जो मौजूदा कादियानी जमात मिर्ज़ा मसरूर और उसके ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, अल्लामा शमसुद्दीन साहब जो करीब ज़माना में मिर्ज़ाइयत पर लानत भेज के अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और हजरत मौलाना अली मुआविया साहब शाह साहब हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। तो बैरूनी मेहमान हो तो मकामियों को ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। मैं ज़रा एक उन्वान से चंद बातें आपके सामने रखूंगा कि जिस उन्वान पे आमतौर पे कादियानी मुसलमानों को धोखा देते हैं। वो उन्वान क्या है? हमारा अकीदा है कि क़यामत से कबल ये 3 लोग जरूर आएंगे, इनमें 2 हस्तियां बड़ी मुकद्दस हैं और एक वो बड़ी मनहूस शख्सियत है। मुकद्दस हस्तियां कौन हैं? सबसे पहले हजरत महदी अलैहि रिज़वान, ये क़यामत से कबल तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। और नंबर 3 वो काना दज्जाल जो नबूवत का दावा करेगा फिर खुदाई का दावा करेगा, ये दज्जाल भी क़यामत से कबल आएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कैफ़ तहलिकु उम्मतुन, वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है, मेरी उम्मत कैसे बर्बाद हो सकती है। अना फी अव्वलिहा, मैं मोहम्मद इसके शुरू और अव्वल में आ रहा हूं। व ईसा इब्न मरियम फी आखिरिहा, और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मरियम के बेटे चराग बीबी का पुत्र मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं। व ईसा इब्न मरियम फी आखिरिहा, और मरियम के बेटे ईसा इस उम्मत के आखिर में तशरीफ लाएंगे। वल महदी फी वस्तिहा, और सैयदना महदी अलैहि रिज़वान इस उम्मत के दरमियान सेंटर में तशरीफ लाएंगे। हजरत महदी भी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और काना दज्जाल भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा, और तरतीब यही होगी, सबसे पहले हजरत महदी तशरीफ लाएंगे और फिर उसके बाद काना दज्जाल आएगा, और फिर उसके बाद दज्जाल को कत्ल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से नाज़िल फरमाएंगे। तरतीब समझ आ गई? आपको तरतीब समझ आ रही है? कादियानी आज सबसे पहले जब किसी मुसलमान से मिलते हैं धोखा देते हैं, और जी हम में और तुम में तो कोई फर्क नहीं है, बस तुम कहते हो कि हजरत महदी आएंगे, हम कहते हैं कि महदी आ गए। कौन महदी आ गए? ए साढ़े मिर्जा साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, ये महदी बन के आ गए हैं। याद रखिएगा, कोई मुसलमान मिर्जा कादियानी को महदी मान के धोखा मत खाए। मैं मानता हूं हम हजरत महदी के मुनकिर नहीं है, हजरत महदी आएंगे, हजरत महदी के हम इंतजार में हैं, हजरत महदी मेरे ईमान का हिस्सा हैं, हजरत महदी जरूर तशरीफ लाएंगे। लेकिन मेरे नबी ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि महदी आएंगे, बल्कि मेरे नबी ने हजरत महदी की एक एक अलामत भी बतलाई है, एक एक अलामत इरशाद फरमाई है, उनका पूरा ट्रेड मार्क बताया है। ट्रेड मार्क बता के, उनकी अलामतें बता के, उनका रूट बता के उम्मत को जेली मेहदियों से, ये मौसमी मेंढकों की तरह से टेंटें करने वाले हर आए दिन मैं महदी हूं, फला महदी है, फला महदी है, फला महदी है, इन जेली और डुप्लीकेट किस्म के महदियों से बचाने के लिए मेरे नबी 1400 साल पहले रहनुमाई कर गए। आज जब कादियानी से स्कूल में बात होती है, कॉलेज में कोई टीचर, कोई प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लेक्चरार मिर्ज़ाई और कादियानी होता है, वो सबसे पहले मेरे मुसलमान नौजवान के ईमान पर हमला करके कहता है, बाजार में, मार्केट में हो, चौक और चौराहे में हो, तो कादियानी कहता है जनाब तुम्हें वैसे मौलवियों ने बरगलाया हुआ है, हम तो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते। मानते हो तो फिर डंके की चोट कहो ना, हम मानते हैं, फिर रिवर्स गेयर क्यों लगाते हो? मानते तुम नबी हो और उसका दावा भी नबी होने का है,
ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 پہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ 26ویں پارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی میں اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی۔ مجھے بتائیے اس سے مدینے والے محمد مراد ہے یا قادیان والا؟ اس سے مدینے والے محمد مراد ہیں، مکین گنبد خضرا مراد ہیں، ختم نبوت کے تاجدار مراد ہیں، امام الانبیاء مراد ہیں، خاتم الانبیاء مراد ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ایک غلطی کا ازالہ، عام قادیانی مرزائی نہیں، غیر ذمہ دار قسم کا نہیں، حوالہ میرے ذمے، میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں۔ مرزائیوں نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے، اگر مرزائی سمجھتے ہیں کہ میرا یہ حوالہ غلط ہے، کسی بھی عدالت میں چیلنج کریں، ہم ان کی کتابوں سے حوالہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مرزا قادیانی ایک غلطی کا ازالہ، نام تو اس کا ایک غلطی کا ازالہ ہے لیکن یہ خود بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 26ویں پارے میں محمد الرسول اللہ میں اس آیت میں کہتا ہے میں مراد ہوں، جہاں جہاں قرآن میں میرے اور آپ کے سونے نبی کا نام ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے وہاں میں مراد ہوں۔ انا للہ و انا، اور میرا مسلمان کہتا ہے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ یہ اخلاق صرف میرے اور تیرے ساتھ میٹھے بول کا نام اخلاق ہے؟ میرے نبی کی توہین کرے، آقا علیہ السلام کی گستاخی کرے، وہاں مجھے غیرت کوئی نہ ہے؟ میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور مجھے حضور کی ذات پر غیرت نہ ہے تو مجھے غیرت کب آئے گی؟ ہمارا دین غیرت والا، میرا اللہ غیرت والا، میرا نبی غیرت والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغیر واللہ اغیر منی، میں محمد سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا۔ اسلام غیرت والا، قرآن غیرت والا، اللہ غیرت والا، مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیرت والے، ہمیں دین غیرت سکھاتا ہے۔ دوستو مرزائی آج دھوکہ دیتے ہیں، ایک طرف مانتے بھی ہیں مرزا قادیانی کو، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اور صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ کہتے ہیں بعینہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کفر نباشد، کہتے ہیں مرزا قادیانی بعینی وہی محمد الرسول اللہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم مرزا قادیانی کو بعینی محمد الرسول اللہ مانتے ہیں تو مسلمان کا ٹمپریچر، مسلمان کی ایمانی غیرت وہ ہائی ہو جاتی ہے اور مسلمان مرنے اور مارنے پہ آ جاتا ہے، اس لیے یہ ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو نبی ماننے کے باوجود، رسول ماننے کے باوجود حوالہ جات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، کہتے ہیں جی اسی تے مرزا صاحب نو نبی نہیں مندے تے تسی کی مندے اولو دے پٹھے نو؟ جی اسی تے مرزا صاحب نو مہدی مننے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مرزائی؟ کہ اسی تے مرزا صاحب نو، مرزا گامے گانے مرزا غلام قادیانی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مہدی مانتے ہیں۔ آئیے ہم بھی حضرت مہدی کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت مہدی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم کسی جیلی قسم کے آدمی کو مہدی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ مہدی آئیں گے، ہمارے آقا نے ہمیں حضرت مہدی کی علامتیں بھی بتلائی۔ مصر کے جید عالم دین علامہ محسن العباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 36 کتابیں، 12 24 اور 12 36، 3 درجن کتابیں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حوالہ سے محدثین الگ سے حضرت مہدی کے عنوان سے شائع کر چکے ہیں۔ 36 کتابیں، 3 درجن کتابیں، اور بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المختصر فی احادیث الامام المنتظر، اس کتاب کے اندر حضرت امام مہدی کی 200 علامتیں حدیث پاک کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی 90 حدیثیں حضرت مہدی کے بارے میں موجود ہیں، جن میں 25 صحابہ اور تابعین سے یہ روایتیں منقول ہیں، اور 33 حدیثیں تو حضرت مہدی کے حوالہ سے بائی نیم حضرت مہدی کا نام لے کے آقا علیہ السلام نے حضرت مہدی کی آمد کے متعلق ارشاد فرمایا۔
हमें हजरत महदी के उन्वान से धोखा न दो। हम उन मुहद्दिसीन के नाम लेवा हैं, हम उन बुजुर्गों के नाम लेवा हैं जिन्होंने हजरत महदी के हवाला से पूरी तहकीक कर रखी है, लेकिन हम हजरत महदी को किसी गारवार से आने वाला नहीं मानते। हम सुन्नी मुसलमान हैं। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि हजरत महदी आम बच्चों की तरह से बाकायदा पैदा होकर तशरीफ लाएंगे। हजरत महदी किसी गारवार में छुपे हुए, बोलिए बोलिए, किसी गार में छुपे हुए, ये किसी गैर सुन्नी लोगों का अकीदा होगा। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है हजरत महदी बाकायदा आम बच्चे जैसे पैदा होते हैं, हजरत महदी पैदा होकर तशरीफ लाएंगे। हजरत महदी की अलामतें सैकड़ों हदीसों का निचोड़ मैं आपको बता के चला हूं। हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा। बोलिए, हजरत महदी का नाम क्या होगा? हजरत महदी का नाम क्या? मोहम्मद। महदी नाम नहीं है, महदी लक़ब है। महदी माना हिदायत वाला। हजरत महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, इस्मुहु युवाती इस्मी, हजरत महदी का नाम में मोहम्मद के नाम के साथ मुवाफिक होगा। मेरे और आपके प्यारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा। अब मिर्ज़े कादियानी को सामने लाएं। हजरत महदी का नाम मोहम्मद है, मिर्ज़े कादियानी का नाम गुलाम अहमद है। नाम मिला? नहीं मिला। हजरत महदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जो हुजूर पाक के वालिद का नाम है। मिर्ज़े गुलाम कादियानी के बाप का नाम मिर्ज़ा गुलाम मुर्तजा खान है। मिर्ज़े कादियानी के बाप का नाम और हजरत महदी के वालिद का नाम मिला। हजरत महदी की वालिदा का नाम आमना होगा। मिर्ज़े कादियानी की मां का नाम चराग बीबी उर्फ कसीटी है। मिर्ज़े कादियानी की मां का नाम हजरत महदी के साथ मिला। हजरत महदी, उनका लक़ब महदी होगा। मिर्ज़े कादियानी का लक़ब गामा, काना, दसुंदी, इसे बचपन में दसुंदी कहा जाता था। और गामा और काना हमारे यहाँ पंजाब में जिसका नाम गुलाम अहमद हो उसको गामा कह देते हैं। गामा और काना इसलिए कि बेचारा वन साइडेड था, एक तरफ 100 वाट का बल्ब है तो दूसरी तरफ 20 वाट का बल्ब था। हाँ जी, अखों कानी ते ना नूर भरी, वाह जी वाह, कुर्बान जावा। है दावा तेरा महदी होने का है, नबी होने का है। अरे नबी की शक्ल सूरत भी बेदाग होती है, नबी की सीरत और किरदार भी बेदाग हुआ करता है। नबी की शक्ल सूरत पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, नबी की सीरत और किरदार पर भी उंगली नहीं उठा सकता। तुम इस मुर्दार लाशे को कहां कहां लिए फिरोगे और इसकी बदबू कैसे छुपाओगे? कयामत की सुबह तक इसकी बदबू आती रहेगी, मेरे नबी के रोज़ा पाक की खुशबू आती रहेगी इंशाअल्लाह। नबी जिंदाबाद। हजरात गिरामी, में ये अलामतें, जब आपका मोबाइल गुम जाए ना और आपका बटुआ गुम हो जाए, किसी के हाथ लग जाए, तो फिर आदमी पकड़ा जाता है अलामतों से। हाँ जी, अगर आप कहेंगे कि ये बटुआ मेरा है, वो जल्दी जल्दी आपको नहीं देगा। मोबाइल मेरा है, नहीं देगा, वो आपसे अलामतें पूछेगा। अगर अलामतें आप सही बता देंगे तो आपको बटुआ मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। चोर अलामतों से पकड़ा जाता है। आओ मिर्ज़ाइयो, हमारी तुम्हारे साथ कोई जाती इनाद और जिद नहीं है, आओ हमें समझाओ तो सही, मिर्जा कादियानी महदी बना तो कैसे बना है, कैसे महदी बन गया? कोई अलामत तो इसके अंदर पाई जाए महदी वाली, जो अल्लाह के नबी की हदीसों में इरशाद फरमाई गई है। हम तो महदी के इंतजार में हैं, हम हजरत महदी की आमद के मुनकिर नहीं है, लेकिन असल महदी को मानेंगे। हम किसी धोखेबाज फराडिये और किसी दगाबाज दज्जाल को महदी मानने के लिए तैयार है? हजरत महदी का नाम मोहम्मद, मिर्जा कादियानी का नाम गुलाम अहमद, महदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, इसके बाप का नाम मिर्जा गुलाम कादियानी के बाप का नाम मिर्जा गुलाम मुर्तजा खान। हजरत महदी के वालिद, हजरत महदी का लक़ब महदी होगा और इसका लक़ब गामा, काना और दसुंदी है। नाम नहीं मिलता, बाप का नाम नहीं मिलता। हजरत महदी की वालिदा का नाम आमिना और इसकी मां का नाम चराग बीबी उर्फ घसीटी। नंबर 5, हजरत महदी मदीना में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। हजरत महदी कहां पैदा होंगे? मदीना पाक में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सब अहादीस के हवाले से बात कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास हदीसों के हवाले लिखे हुए हैं।
मैंने बाकायदा मजमून लिखा हुआ है, अपनी डायरी में अलग से लिखा हुआ है, किताबों के हवाले के साथ। हजरत महदी कहां पैदा होंगे? मदीना पाक में। और मिर्जा कादियानी ये इंडिया में कादियान में पैदा हुआ। मिर्जा कादियानी फिर महदी हो सकता है? इसने ख्वाब में भी मदीना नहीं देखा, इसको तो ख्वाब में भी बरतानिया नजर आया करता था, मलका विक्टोरिया नजर आया करती थी, इसे तो ख्वाब में अंग्रेज इश्तिहार नहीं लगाते फिरेंगे कि मुझे महदी मान लो, मुझे महदी मान लो, मुझे महदी मान लो। ना ना, हजरत महदी अपने नाम के इश्तिहार नहीं शाया करेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरफ से नहीं, बल्कि हजरत महदी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे कि उलमा गौस कुतुब अब्दाल उम्मत के औलिया खुद पहचान लेंगे ये वही महदी है। उम्मत के इंतशार है, उम्मत बिखर चुकी है, आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, बैतुल्लाह के साए में उनके हाथ पर बैत की जाएगी। और मिर्जा गुलाम कादियानी ये तो खुद अपने नाम के इश्तिहार शाया कर रहा है, अपने नाम के खुद इश्तिहार शाया करना कि मैं महदी हूं, मुझे महदी मान लो। जो खुद अपने इश्तिहार शाया करे, इसके झूठे होने की और कोई अलामत मत तलाश करो, इसके खुद इश्तिहार लगाना, अपने नाम के खुद इश्तिहार लगाना खुद इसके झूठे होने की दलील है। बोलिए बोलिए, खुद इसके झूठे होने की। और नंबर 7, हजरत महदी जो होंगे, सुभान अल्लाह, फरमाया 7 साल दुनिया पर खिलाफत करेंगे। हजरत महदी कितने साल तक हुकूमत करेंगे, खिलाफत करेंगे? 7 साल तक खिलाफत करेंगे। हम मिर्ज़ाइयों से पूछ सकते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को एक दिन भी खिलाफत नसीब हुई? इसको अपने घर के बंदों ने नहीं माना, अपनी बेगम नहीं मान रही, अपने बच्चे नहीं मान रहे, इसको दुनिया पर खिलाफत कहां नसीब होगी? हदीस शरीफ में आता है 7 साल तक हजरत महदी दुनिया पर खिलाफत करेंगे। मिर्ज़ा कादियानी को एक दिन भी खिलाफत नसीब नहीं हुई
तो कैसे मान ले? तू कौन रखे मैं खामखा, तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। भाई कैसे मान ले मिर्ज़ा कादियानी कोई कि ये महदी है? हजरत महदी की जो अलामात, जो ट्रेडमार्क, जो निशानियां, जो अलामतें मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कर गिनवाई है, बतलाई है, उनमें से कोई अलामत भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अंदर नहीं पाई जा रही। मिर्ज़ा कादियानी को वही माने, महदी माने जो पागल हो। हमें अल्लाह ने इल्म दिया है, हमें अल्लाह ने अकल दी है। हजरत महदी के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, हाँ जी, दिमश्क की जामिया मस्जिद वहां पर उतरेंगे, इंद मनारतिल बैज़ा, सफेद मीनारे के करीब वहां पर हजरत ईसा इब्न मरियम दो फरिश्तों के सहारे आसमान से मीनार तक तशरीफ लाएंगे। वहां से आगे सीढ़ी लगाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा। फरमाया फजर की नमाज होगी, तकबीर कही जा चुकी होगी, हजरत महदी मुसल्ले पे होंगे, हजरत महदी मुसल्ले पे होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हदीस शरीफ में आता है हजरत महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर, चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगरचे आएंगे तो उस वक्त वो अपनी शरीयत की बात नहीं करेंगे, लेकिन होंगे नबी, होंगे नबी, क्योंकि नबूवत कोई सरकारी ओहदा नहीं है कि एक मर्तबा देकर फिर छीन लिया जाए, उससे माजूल कर दिया जाए, नहीं, होंगे नबी। लेकिन अब नबूवत की शान से अपनी शरीयत, अपनी इंजील की तालीमात के जरिए से नहीं आएंगे, आका अलैहिस्सलाम के गुलाम बन के आएंगे, आका अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के आएंगे, कुरान की तालीमात को आम करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को आम करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, हजरत महदी इमाम तो है लेकिन नबी तो नहीं है, हजरत महदी पीछे हटेंगे। हदीस शरीफ में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूं दोनों कंधों के दरमियान हाथ रख के कहेंगे, नहीं आप आगे बढ़िए, आप मुसल्ले पर खड़े हो जाइए, ये नमाज, ये तकबीर आपके लिए कही गई है, लिहाजा ये नमाज आप पढ़ाएंगे, ये पहली नमाज हजरत महदी पढ़ाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत महदी की इक्तिदा में, इमामत में खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। उम्मत की शान बतानी है कि सोने मुस्तफा की उम्मत की शान कितनी ऊंची है। जब उम्मत की शान का ये आलम है, सोने मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। और फिर माँ बाप की नमाजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद पढ़ाएंगे। लेकिन कादियानी क्या कहते हैं? कादियानी कहते हैं जी मिर्जा साहबी महदी और मिर्जा साहबी मसीह है। ये तो फिर एक शख्स हुआ ना। हदीस शरीफ बता रही है कि महदी मुसल्ले पे होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे सफ में खड़े होंगे, मुसल्ले पे अलग शख्स खड़ा है, सफ में अलग शख्स खड़ा है। जो मुसल्ले पे खड़ा है हदीस पाक के मुताबिक उसे महदी कहा जाता है, जो पीछे सफ में खड़ा है उसे ईसा अलैहिस्सलाम कहा जा रहा। लेकिन मिर्जाई और कादियानी क्या कहते हैं? मिर्जाई और कादियानी कहते हैं कि महदी और ईसा एक ही शख्स है। और वो कौन है जी? मिर्जा गुलाम कादियानी। भाई महदी अलग शख्स है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्स है। और एक अलामत हदीस पाक में ये भी इरशाद फरमाई गई है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत महदी के जमाने में हजरत महदी चूंकि ईसाइयों के खिलाफ जिहाद करेंगे, ईसाइयों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, यहूदियों और दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे। हजरत महदी 3 जंगें जब लड़ेंगे, पहली जंग में मुसलमानों को शिकस्त हो जाएगी, दूसरी जंग में भी शिकस्त हो जाएगी। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। फरमाया तीसरी मर्तबा जब मैदान जंग सजेगा, अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएंगे और उसमें मुसलमान जीत जाएंगे, ईसाई हार जाएंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जंग की फतह से मुसलमानों को इतनी खुशी नहीं होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। क्यों? कि 200 आदमियों में से 199 आदमी तो शहीद हो चुके होंगे, 200 में से कोई एक आदमी बचा होगा, लाशों के ढेर लग चुके होंगे, लाशों के अंबार लग चुके होंगे। जब ये तीसरी मर्तबा फतह होगी तो ऐन इस दौरान पता चलेगा कि दज्जाल, काना दज्जाल आ गया है। हजरत महदी 5 मुसलमानों को उसके तहकीक हाल के लिए भेजेंगे कि जाओ मालूम करके आओ वाकई दज्जाल आ गया है या नहीं आया है। ये 5 मुसलमान, आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन 5 मुसलमानों के नाम जानता हूं, उनके माँ बाप के नाम जानता हूं, मैं उनके घोड़ों के रंग जानता हूं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने उन मुजाहिदीन के नाम, उन मुजाहिदीन के वालिदैन के नाम और उनके घोड़ों के रंग इरशाद फरमाए। फरमाया कि मैं जानता हूं वो ईसाइयों के खिलाफ जिहाद करेंगे, दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी दज्जाल जिहाद का मुनकिर है।
अगर मिर्जा कादियानी महदी होता तो ये दुनिया ईसाइयत के खिलाफ जिहाद करता, लेकिन ये तो दुनिया ईसाइयत के खिलाफ क्या जिहाद करता, ये तो अंग्रेज का गुमाश्ता और पिट्ठू बन के जिंदगी गुजारता रहा। मालूम हुआ मिर्जा कादियानी किसी तौर महदी हो सकता? बोलिए बोलिए, महदी हो सकता? तो क्या ख्याल है अगर हजरत महदी के उन्वान से कोई मिर्जाई आपको धोखा देना चाहे? हम तो मिर्जाइयों को भी कहते हैं, हमें भी समझाओ यार, मिर्जा कादियानी कैसे महदी बन गया? नाम इसका नहीं मिलता, बाप का नाम इसका हजरत महदी के बाप के साथ नहीं मिलता, मां का नाम नहीं मिलता, कौम नहीं मिलती, विलादत की जगह नहीं मिलती। हजरत महदी मदीना में पैदा होंगे, ये कादियान में पैदा हुआ, कौम नहीं मिलती, लकब नहीं मिलता, उनका लकब महदी है, ये गामा काना और दसुंदी है, लकब नहीं मिलता। हजरत महदी खुद महदी होने का दावा नहीं करेंगे, ऐलान नहीं करेंगे, ये खुद ऐलान करता फिर रहा है, इश्तिहार शाये करता फिर रहा है। हजरत महदी जिहाद करेंगे, ये जिहाद का मुनकिर है। हजरत महदी के जमाने में दज्जाल का ज़ुहूर होगा और ये खुद दज्जाल बना फिरता है। हजरत ईसा अलग है, महदी अलग है। तुम मिर्जाई कहते हो कि मिर्जा कादियानी महदी भी है और ईसा भी है, किसी तौर मिर्जा गुलाम कादियानी महदी हो सकता? हमारे खत्म नबूवत के वर्कर साथी थे भाई तारिक साहब, आजकल सऊदी अरब चले गए, पिछले दिन आए भी थे, अब मुझे मालूम नहीं इधर ही चले गए। तो वो मजदूर आदमी रिक्शा चलाता, अनपढ़ आदमी, हमने खत्म नबूवत कोर्स कराया और उसमें हजरत महदी के हवाला से ये अलामतें हमने अपने नौजवानों को यूं उंगलियों पर रटाई। हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा, सैयद खानदान से होंगे, महदी उनका लक़ब होगा। वो खुद से महदी होने का दावा नहीं करेंगे, ऐलान नहीं करेंगे, उनकी कौम सैयद होगी, वो मदीना में पैदा होंगे, हिजरत करके मक्का जाएंगे, मकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान होंगे। हदीस शरीफ में आता है बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल उनके हाथ पर बैत करेंगे, सारी उम्मत उनके झंडे तले जमा हो जाएगी। हजरत महदी दुनिया ईसाइयत के खिलाफ जिहाद करेंगे। हजरत महदी 7 साल तक खिलाफत करेंगे। मिर्जा कादियानी को एक दिन भी खिलाफत, ये अलामतें हमने अपने नौजवानों को ये उंगलियों पर अहादीस की रोशनी में ज़बानी याद करवाई। एक आदमी चौक से लाइट टाउन सरगोदा में उसके साथ रक्शे में बैठ गया, इसने उसको खत्म नबूवत की दावत दी कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी, सबक याद है या भूल गए? आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी, और जो बदबख्त अब नबी होने का दावा करेगा काफिर है, जो उसे नबी माने कि वो मुसलमान नहीं काफिर है। ये जब मिर्जा गुलाम कादियानी और मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले मुसलमान नहीं है, काफिर है। ये सबक उसे याद कराया। उसने जब ये बात कही तो वो रिक्शे में बैठने वाला आदमी कहने लगा, नहीं यार तो अनु मौलवी गलत राह ते ला देता है, मिर्जाई ते मिर्जा साहब नु नबी नहीं मनदे। वही बात आई ना, मिर्जा साहब नु नबी नहीं मनदे। उसने कहा नहीं नबी मनदे ने। एक गलती का इजाला सफा नंबर 4 पे मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू कैसे कहता? ओ नहीं यार मैं नहीं मनदा, ये मौलवियों ने तुम्हें गलत राह पे लगा दिया। उसने कहा अच्छा तो फिर की मनदे ने? महदी मनदे ने। उसने ताजा ताजा सबक पढ़ा हुआ था। अब जो उसने हजरत महदी की अलामतें हदीस पाक की रोशनी में शुरू की ना, हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम गुलाम अहमद है, महदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तजा है, हजरत महदी की वालिदा का नाम आमना होगा, इसकी माँ का नाम चराग बीबी है, हजरत महदी की कौम सैयद होगी और ये मुगल बरलाश है। हजरत महदी वो मदीना में पैदा होंगे, ये कादियान और इंडिया में पैदा हुआ। हजरत महदी हिजरत करके मक्के जाएंगे, इसने न मक्का देखा न मदीना देखा, वो मकाम इब्राहिम हजर असवद के दरमियान होंगे, बैतुल्लाह के साए में उनका हाथ पर बैत होगी और इस खबीस ने मक्का मदीना और बैतुल्लाह देखा ही नहीं है। इस तरह से जो 5-7 अलामतों से लताड़ा, बस उसको तो ऐसे खामोश हुआ जैसे सांप सूंघ गया है। तो क्या ख्याल है, आज का सिर्फ जलसा नहीं बल्कि हमारा एक सबक है। हम क्लास रूम में बैठे हैं, ये अलामतें आप भी अपनी उंगलियों पर गिन के शुमार करके जबानी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई मिर्जाई और कादियानी माने जना ही नहीं है। अगर आप ये अलामतें याद कर लें, ये सबक याद कर लें, एक रिक्शे वाला चिट्टा अनपढ़ आदमी अगर ये अलामतें याद करके मिर्जाई को लाजवाब कर सकता है तो मेरा 71 चक का पढ़ा लिखा मुसलमान भी मिर्जाइयों को लाजवाब कर सकता है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर पाक की खत्म नबूवत का पहरा देंगे, इंशाअल्लाह आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का परचम बुलंद रखेंगे, इंशाअल्लाह मिर्जाई फितने का ताक़ुब करेंगे, इंशाअल्लाह। और हम तो मिर्जाइयों से भी कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं। हम जब भी खत्म नबूवत के लिए महाज पर निकलते हम जिहाद समझ के निकलते हैं, हम अपनी जान हथेली पर रख कर निकलते हैं। मारना हमारी जमाती पॉलिसी नहीं है, लेकिन आओ मारो, खुदा की कसम हम हुजूर की जात पर फिदा और कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, फिदा और कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह
तुम हमें पीछे नहीं पाओगे, हमें हर मैदान में सफ़े अव्वल में पाओगे। लेकिन शरारत खामखा ये हमारा मिशन नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। हम दावत देते हैं, दलाइल की बुनियाद पर देते हैं। आज भी दलाइल के अंबार लगा के जा रहा हूं मुख्तसर वक्त में। आओ हमें भी समझाओ, मिर्जा कादियानी महदी बना तो कैसे बना है, इसको महदी माने तो कैसे माने, हमें भी तो कोई समझाओ ना। लेकिन हरगिज तुम्हारे पल्ले दलाइल नाम की चीज नहीं है, तो फिर जहन्नम की आग से बचो। मरना है, ये दुनिया और दुनिया की रौनकें यही रह जाएंगी। एक दिन हमने मरना है, जरूर मरना है। अपनी कब्र आखिरत की फिक्र करो। हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, आओ। किस झूठे शख्स को तुमने महदी मान लिया है? मिर्जा गुलाम कादियानी महदी नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह का नबी नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह का रसूल नहीं है। हम हजरत महदी के मानने वाले, लेकिन महदी वो जिनकी अलामतें ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाई हैं। हम उन अलामात की रोशनी में हजरत महदी के इंतजार में हैं। हम किसी झूठे और डुप्लीकेट किस्म के शख्स को महदी मानने के लिए तैयार है। और जब मिर्जइयों से बात होती है, ये ओल्ड सिविल लाइन सरगोदा में यहाँ एक मिर्जई था, मिर्जा अब्दुल हक एडवोकेट, मर गया है। वो वकील भी था और मिर्जइयों का पूरी दुनिया का चीफ जस्टिस था। चनाब नगर में ये इतवार वाले दिन अपनी अदालत लगाया करता था। हमारे एक आम से नौजवान है, हाफिज साहब हैं, आलिम भी नहीं है। एक मरतबा कहीं मिर्जई घेर घार के उसको उसकी कोठी पर ले गए। सालाना उसकी कोठी पर एक प्रोग्राम होता, उसमें ये मिर्जइयों को भी बुलाते, मुसलमान नौजवानों को भी घेर घार के लिए आते। तो इसने कहा जी मिर्जा अब्दुल हक जो था, ये ओल्ड सिविल लाइन सरगोदा में, यहाँ ये कहने लगा जी हम में और तुम मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, बस तुम कहते हो महदी आएंगे, हम कहते हैं मिर्जा साहब की शक्ल में महदी आ गए, बाकी हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। जब ये बात कही तो हमारे वो हाफिज साहब खड़े हो गए, कहने लगे मिर्जा अब्दुल हक साहब ये बताएं कि हम में और आप में और कोई फर्क नहीं है? कहने लगा कोई फर्क नहीं है। कहने लगे फिर तुम हमें मुसलमान क्यों नहीं समझते? लगता है कि ये सिर्फ तुमने डकोसला और ढोंक रचाया हुआ है कि हम में और तुम में सिर्फ महदी का फर्क है। तुम कहते हो महदी आएंगे, इंतजार में हो, हम कहते मिर्जे की शक्ल में महदी आ गया। कहते चलो मान लेते हैं कि हम में और तुम में यही फर्क है। क्या बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्ने माजा में, सुनन नसाई में, हदीस पाक की इन किताबों में हजरत महदी के मुताल्लिक इतना ही कहा गया कि महदी आएंगे या उनकी कोई अलामतें भी इरशाद फरमाई है? कहने लगा नहीं, अलामतें भी दसी होनी। हमारे हाफिज साहब कहने लगे फिर ले आओ ना किताबा, हदीस दियां किताबा ले आओ, तो हजरत महदी दी अलामतें भी सामने रखो। ओ नहीं जी वो तो साढ़े चनाब नगर तो मुरब्बी आणगे, वड्डे मुरब्बी आणगे तो वही दसणगे। हाँ जी, ये बात करके वो जान छुड़ाने लगा। हमारे वो हाफिज साहब कहने लगे कौन तेरी जान नहीं छुटती। अब जो तुम कहते हो ना कि मिर्जा कादियानी महदी है, तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत महदी की अलामतें भी इरशाद फरमाई है। अलामतों से चोर पकड़ा जाता है, लाओ हदीस की किताबें, हम हदीस की किताबों के जरिए तुम्हें नखेड़ा करके दिखाते हैं कि मिर्जा कादियानी नबी होना तो दरकिनार, रसूल होना तो दूर की बात है। अल्लाह की कसम मिर्जा गुलाम कादियानी महदी भी नहीं है। कहने लगा अच्छा चनाब नगर से मुरब्बी आएंगे। अगले हफ्ते चनाब नगर से मुरब्बी बुलाए। हम अपने उलमा को मौलवी कहते हैं ना, मौलवी आलिम उलमा, ये अपने मौलवियों को मुरब्बी कहते हैं। उन्हें क्या पुत्र जी हम मुरब्बी नहीं पाए, मुरब्बा भी बुला ले, इंशाअल्लाह हम मसला हल नहीं होना, हम तुम्हारी दाल नहीं गलनी। अगले हफ्ते उसने चनाब नगर से मुरब्बी बुलाए। इन्होंने बुखारी और मुस्लिम के हवाला से हजरत महदी की अलामतें रट के गए। उन अलामतों के जरिए चनाब नगर के मुरब्बियों को ऐसे फंसाया कि वो जो भागे उसके बाद न कोई मुरब्बी नजर आया न कोई मुरब्बा नजर आया। क्या ख्याल है भाई? ये हजरत महदी की अलामतें जो हदीस पाक में इरशाद फरमाई है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ इसी जरिए से यार मिर्ज़ई जो हमें दावत देते हैं, मिर्ज़ई हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, हम मुसलमान क्यों नहीं जुर्रत पैदा करते? हम कब तक अपने किले में बंद होके अपना दिफा करते रहेंगे? वो गलीज हम पर हमले करते रहेंगे, हम बचाव करते रहेंगे? नहीं, किले से बाहर निकलो और किले से बाहर निकल के दलाइल के मैदान में उन पर हमला करो। वो अपने दिफा पर मजबूर हो, हम हमला करने वाले हो। हम दलाइल की दुनिया में उन पर हमला करें कि तुम कहते हो मिर्जा कादियानी महदी है, हमें महदी समझा दो, मिर्जा कादियानी कैसे महदी बन गया है। अल्लाह करीम हमें हक की समझ नसीब फरमाए, हक की पैरवी नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें बातिल और अहले बातिल से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।